Chapter number 9, ISLM model or Journal Framework for Macroeconomic Analysis. First topic of chapter number 9 is how to represent labor market equilibrium. Labor market equilibrium we have discussed in chapter number 3. Labor market equilibrium means labor demand equals to labor supply. Labor demand curve always negatively slope, labor supply always positively slope. Labor demand curve, derivation of labor demand curve we have derived from firm productivity and marginal product of labor. Individual labor demand curve is MPN curve. Aggregate labor demand curve is sum of all individual labor demand curve. The horizontal summation of all individual firms' labor demand curve is aggregate labor demand curve. And y-axis real wages. Real wages increase, cost of labor increase, firm demand less labors. Real wages decrease, cost of labor decrease, firm demand more labor. Aggregate labor demand curve always negatively slope. Aggregate labor supply curve or NS curve. Aggregate labor supply curve we derive from income ledger model. Aggregate labor supply curve shows the relationship between real wages and willingness to work. Real wages increase, willing to work increase, real wages decrease, willing to work decrease. Aggregate labor supply curve, aggregate labor demand curve. Labor market equilibrium means labor demand equals to labor supply. At equilibrium point, wages are market clearing real wages, and at equilibrium point, level of labor force is full employment, level of employment, or efficient allocation of our resources and labors. ठीक है? तो full employment, level of employment, at full employment, level of output is full employment output. So full employment output is potential output. Full employment level of employment means unemployment rate is zero. तो कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट हमने अंडरस्टैंड किया था नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज frictional unemployment plus structural unemployment for some economists, and for some economists only frictional unemployment is natural rate of unemployment. So natural rate of unemployment or full employment level of output achieved after complete adjustment of wages and prices. ठीक है. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे जो आउटपुट होता है उस आउटपुट को हम क्या कहते हैं पोटेंशियल आउटपुट. पोटेंशियल आउटपुट मीन्स जितने भी रिसोर्सेज थे आपने उन सबको यूटिलाइज कर लिया. आप इससे ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते. तो इसका मतलब क्या हुआ कि लॉन्ग रन के अंदर आउटपुट आपका कांस्टेंट होता है, आप उससे ज़्यादा आउटपुट बढ़ा नहीं सकते. तो फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट को अगर हम एक्सप्लेन करने जाएं तो हमारे पास जो कर्व बनती है वो कर्व आपकी क्या बनती है, वो बनती है आपके पास वर्टिकल शेप कर्व. और इस कर्व के वाई एक्सिस में हमारे पास रियल इंटरेस्ट रेट है. तो रियल इंटरेस्ट रेट की कोई भी वैल्यू, रियल इंटरेस्ट रेट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट को इम्पैक्ट नहीं करता. तो वाई एक्सिस रियल इंटरेस्ट रेट, एक्स एक्सिस आउटपुट, और ये हमारे पास क्या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट. तो एनी चेंजेस इन लेबर मार्केट, अगर लेबर सप्लाई कम हो जाए, लेबर डिमांड कम हो जाए, तो दोबारा एडजस्टमेंट आपके पास होती है. रियल वेजेस आपकी चेंज होती है, रियल इंटरेस्ट रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता. रियल इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन होता है गुड्स मार्केट से, चैप्टर नंबर 4 से. तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज और डिक्रीज होता है शॉर्ट रन में, वो होता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट की वजह से. तो सेविंग इन्वेस्टमेंट से जो रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज और डिक्रीज होता है उससे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता. तो फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट कर्व ऑलवेज वर्टिकल शेप बिकॉज वाई एक्सिस में क्या है, रियल इंटरेस्ट रेट है, और ये आउटपुट पोटेंशियल आउटपुट है.
इससे ज़्यादा आउटपुट आप प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी लोग विलिंग टू वर्क थे उन सबको आपने इफ़िशिएंटली एलोकेट कर लिया है। और जो कैपिटल आपने यूज़ किया है वो भी आपके पास क्या है, डिज़ायर कैपिटल स्टॉक है, यानी कैपिटल की वो क्वांटिटी आपने यूज़ की है जिस पे प्रॉफिट मैक्सिमम है। तो वाई इज फंक्शन ऑफ ए इज प्रोडक्टिविटी, के इज कैपिटल डिज़ायर कैपिटल स्टॉक, एन इज full employment level of employment, alpha and beta powers of inputs, y bar and n bar। ये हमने रिव्यू किया चैप्टर नंबर 3। शिफ्टिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो लॉन्ग रन के अंदर लेबर मार्केट के अंदर शिफ्टिंग होती है। लॉन्ग रन में शिफ्टिंग क्यों होती है? क्योंकि लेबर मार्केट के अंदर जो वेजेस होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बिटवीन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दरमियान, जो आपके लेबर्स होते हैं और उनके और फर्म के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो शॉर्ट रन के अंदर ना वेजेस आपकी चेंज होती हैं, ना फर्म अपने लेबर्स को फायर का डिसीजन ले सकता है। तो लॉन्ग रन के अंदर हायरिंग और फायरिंग होती है और वेजेस इंक्रीज और डिक्रीज होती हैं। तो शॉर्ट रन के अंदर आउटपुट कैलकुलेट नहीं किया जाता। तो आउटपुट और लेबर मार्केट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो लॉन्ग रन का होता है। शॉर्ट रन में चेंजेस नहीं होती, लॉन्ग रन के अंदर चेंजेस होती हैं। तो इन लॉन्ग रन एनी फैक्टर्स ऑफ लेबर मार्केट लाइक participation rate increase, labor supply increase and output increase, capital stock increase, technology increase, productivity increase, labor demand increase and output increase. Any factor of labor market output increase means FE curve vertically shift rightward. Any factor that decrease full employment level of employment, FE curve vertically shift leftward. तो प्रोडक्टिविटी आउटपुट डिक्रीज किन फैक्टर से होता है? एडवर्स सप्लाई शॉक। एडवर्स सप्लाई शॉक अगर आपको याद हो, एडवर्स सप्लाई शॉक का मतलब क्या था? आपकी कंट्री में फ्लड आ जाए, कोई दूसरा नेचुरल डिजास्टर आ जाए, तो इससे होता है कि आपके पास आपका जो पोटेंशियल आउटपुट होता है वो आपका डिक्रीज हो जाता है। तो इफ यू कर्व शोज लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम, और लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम आपका चेंज होता है ड्यू टू फैक्टर्स ऑफ लेबर मार्केट। बेनिफिशियल सप्लाई शॉक, एफ कर्व शिफ्ट rightward, increase in labor supply due to any reason, labor supply curve shift rightward, increase in capital stock, full employment level of output shift rightward, ठीक है। तो एफ कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा ड्यू टू फैक्टर्स ऑफ लेबर मार्केट। तो लेबर मार्केट की ये कॉन्सेप्ट्स हैं, एफ कर्व, बेनिफिशियल सप्लाई शॉक, इंक्रीज इन लेबर सप्लाई, और एडवर्स सप्लाई शॉक से एफ कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड, बेनिफिशियल से राइटवर्ड शिफ्ट। तो ये था चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन। और चैप्टर नंबर 3 से हम जिस टूल को यूज़ करते हैं जर्नल इक्विलिब्रियम के लिए, वो टूल आपके पास क्या है? एफी कर्व। एफी कर्व शोज फुल एम्प्लॉयमेंट लाइन और फुल एम्प्लॉयमेंट कर्व एट ईच पॉइंट ऑफ एफी कर्व। लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई दोनों आपकी क्या होती हैं? इक्वल होती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? एफी कर्व रिप्रेजेंट लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये था एफी कर्व फॉर लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। अब हम आते हैं फॉर गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। तो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम मीन्स इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। तो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम इन क्लोज इकोनॉमी हमने अंडरस्टैंड किया था, जहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होती है। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। तो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम से अब हम ड्रॉ करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स मार्केट इज आई एस कर्व। आई एस कर्व का मतलब क्या है? सेविंग इन्वेस्टमेंट कर्व, ठीक है। देखें हाउ टू ड्रॉ आई एस कर्व। अगर आप रिव्यू क्वेश्चन में देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ड्रॉ आई एस कर्व एंड आइडेंटिफाई फैक्टर्स दैट शिफ्ट आई एस कर्व, ठीक है। तो आई एस कर्व को हम ड्रॉ करते हैं, उसके क्या स्टेप्स हैं ये आपने अंडरस्टैंड करने। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज हम दो डायग्राम्स बना रहे हैं। डायग्राम नंबर 1 शोज गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम, और आप सबको मालूम है गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम मींस रियल इंटरेस्ट रेट वाई एक्सिस, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एक्स एक्सिस। आपको मालूम है सेविंग कर्व इज ऑलवेज पॉजिटिवली स्लोप,
इन्वेस्टमेंट कर्व ऑलवेज नेगेटिव स्लोप। और वाई इन्वेस्टमेंट कर्व नेगेटिव स्लोप का आंसर भी आपको मालूम है। रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज, डिजायर कैपिटल स्टॉक डिक्रीज एंड इन्वेस्टमेंट डिक्रीज। वाई सेविंग कर्व पॉजिटिवली स्लोप, ये भी आपको मालूम है। सेविंग कर्व पॉजिटिव स्लोप क्यों होता है? बिकॉज रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज का मतलब क्या? रिटर्न्स ऑन सेविंग्स इंक्रीज। रिटर्न ऑन सेविंग इंक्रीज, लोग कंजम्पशन कम कर देते हैं और सेविंग्स बढ़ा देते हैं। तो इक्विलिब्रियम रियल इंटरेस्ट रेट और इक्विलिब्रियम इन गुड्स मार्केट, सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट और बोरिंग इक्वल्स टू lending. Goods market equilibrium restore होता है after complete adjustment of real interest rate. Complete adjustment means if saving greater than investment, factors of saving investment decrease real interest rate. Investment greater than saving, factors of investment and saving increase real interest rate. Goods market equilibrium, saving equals to investment. The first step how to draw IS curve is two diagrams. तो first diagram goods market equilibrium, second diagram के अंदर वाई एक्सिस में हम प्लॉट करेंगे रियल इंटरेस्ट रेट और एक्स एक्सिस में हम प्लॉट कर रहे हैं आउटपुट। ठीक है, तो ये स्टेप नंबर 1 हमने ड्रॉ कर दिया। अब इसको थोड़ा सा लेबल कर लेते हैं। लेट सपोज, चलें बुक की लेबलिंग को हम फोकस करते हैं। तो इनिशियली 5% रियल इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, 7% रियल इंटरेस्ट रेट है और आउटपुट 4000 है ना। तो इन्हीं लेबल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि जब आप फिर बुक को पढ़ो तो आपको प्रॉब्लम्स ना हो। तो लेट सपोज इनिशियल आउटपुट इज 4000, ठीक है। 4000 रियल इंटरेस्ट रेट हमारे पास कितना है? 7% रियल इंटरेस्ट रेट। इस डायग्राम को इस डायग्राम से हम लिंक करते हैं। तो ए पॉइंट का मतलब क्या है? इट ए पॉइंट 7% इज रियल इंटरेस्ट रेट एंड इट 7% 4000 इज रियल जीडीपी और आउटपुट। दिस इज स्टेप नंबर 1। ये हमने दो डायग्राम ड्रॉ किए। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, लेट सपोज आउटपुट इंक्रीज। हम अज्यूम करते हैं कि आउटपुट इंक्रीज हो गया 4000 से, आउटपुट इंक्रीज होकर कितना हो गया आपका? 5000, ठीक है। तो आउटपुट इंक्रीज 4000 टू 5000। अब 5000 आउटपुट हो गया। अब इस 5000 आउटपुट का गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ठीक है, तो आउटपुट और रियल जीडीपी तीन आंसर समय देता है। टोटल स्पेंडिंग, टोटल इनकम एंड टोटल आउटपुट। तो आउटपुट इंक्रीज का मतलब क्या? टोटल इनकम इंक्रीज। और कौन सी इनकम? करंट इनकम। तो करंट इनकम इंक्रीज, करंट इनकम इज फैक्टर ऑफ सेविंग, है ना। तो सेविंग का फैक्टर है करंट इनकम। तो करंट इनकम ऑलवेज लीड्स टू इंक्रीज इन सेविंग बट प्रोपोर्शनली लेस देन इंक्रीज इन इनकम। तो करंट इनकम इंक्रीज से गुड्स मार्केट में क्या होगा? सेविंग इंक्रीज, सेविंग कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। इसके क्या रीजंस हैं ये सब हम बहुत डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। तो सेविंग इंक्रीज, सेविंग कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। तो सेविंग इंक्रीज का मतलब क्या है? 7% रियल इंटरेस्ट रेट पे आप लोग विलिंग टू सेव कितना है? लेट्स सपोज 1200 विलिंग टू सेव है। इनिशियली सेविंग इन्वेस्टमेंट कहाँ पर थी आपके पास? 1000 सेविंग था, 1000 आपका इन्वेस्टमेंट था। अब इनकम बढ़ने की वजह से लोग 1200 सेव करना चाह रहे हैं। अब गुड्स मार्केट के अंदर सेविंग्स क्या होगी? ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पावर्स अब रियल इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करेंगे। और रियल इंटरेस्ट रेट कब तक डिक्रीज होगा? जब तक न्यू इक्विलिब्रियम आपका रीस्टोर ना हो जाए। तो न्यू इक्विलिब्रियम रीस्टोर एट पॉइंट बी। पॉइंट बी के ऊपर रियल इंटरेस्ट रेट अब आपका डिक्रीज हो चुका है। न्यू रियल इक्विलिब्रियम रियल इंटरेस्ट रेट इज 5%। और इक्विलिब्रियम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स अब आपकी कितनी हो गई? 1100 न्यू इक्विलिब्रियम सेविंग एंड न्यू इक्विलिब्रियम इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4000 आउटपुट पे हम ए पॉइंट के ऊपर थे। अब 5000 आउटपुट है, 5000 आउटपुट पे हम बी पॉइंट पे हैं। पहले रियल इंटरेस्ट रेट 7% था, अब रियल इंटरेस्ट रेट कितना आपका?
5% है। तो जो बी पॉइंट इस ग्राफ में हम लेबल करेंगे वो इस पॉइंट के ऊपर आएगा, ठीक है, ए पॉइंट एंड बी। तो ये हमने सेकंड स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, हाउ टू ड्राइव आई एस कर्व के अंदर, ठीक है। अब थर्ड स्टेप हम ए पॉइंट और बी पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। ए और बी पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक डाउनवर्ड स्लोप कर्व आती है, ठीक है। अब देखिए ये जो डाउनवर्ड स्लोप कर्व है ये चार वेरिएबल्स को एक्सप्लेन कर रही है। डाउनवर्ड स्लोप कर्व shows the relationship between real interest rate and output. At each point of this curve, saving equals to इन्वेस्टमेंट। ए पॉइंट पे भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल है, बी पॉइंट पे भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कर्व के हर पॉइंट के ऊपर सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपकी क्या है, इक्वल है डिफरेंट रियल इंटरेस्ट रेट पर। तो रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम की जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी की सारी इस कर्व के अंदर शो हो रही। तो इस कर्व को हम क्या कहते हैं, इस कर्व को कहा जाता है आई एस कर्व और इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व। इसे आइस कर्व क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस कर्व के हर पॉइंट के ऊपर गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। तो एट ईच पॉइंट ऑफ आइस कर्व सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। आइस कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन रियल इंटरेस्ट रेट एंड आउटपुट। एट ईच पॉइंट ऑफ आइस कर्व सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। तो ये जो कर्व है, ये कर्व क्या शो कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये हमने आइस कर्व को हमने ड्रॉ कर लिया। तो आइस कर्व ऑलवेज नेगेटिवली स्लोप आइस कर्व रिप्रेजेंट करती है गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को, ठीक है। तो ये डायग्राम है, ये इसकी कमेंट्री है, सेम कमेंट्री हमने प्रैक्टिस की। अब हम आते हैं फैक्टर्स दैट शिफ्ट आई एस कर्व। आइस कर्व शिफ्ट होगी राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड। क्यों शिफ्ट होगी, आइस कर्व शिफ्ट होगी ड्यू टू फैक्टर्स ऑफ सेविंग और फैक्टर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। अब हम आते हैं शिफ्टिंग ऑफ आई एस कर्व। तो आइस कर्व की शिफ्टिंग के लिए आपको गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, चैप्टर नंबर 4 में फैक्टर्स ऑफ सेविंग और फैक्टर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की आइडेंटिफिकेशन आपकी यहाँ पर भी चैप्टर 9 में भी काम आ रही है, ठीक है। देखें सेविंग के कितने फैक्टर्स हमने अंडरस्टैंड किए थे, सेविंग के बहुत सारे फैक्टर्स हमने पढ़े थे। करंट इनकम वाई सी, फ्यूचर इनकम वाई एफ, इसी तरह गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, वेल्थ, टैक्सेस, फ्यूचर इन एक्सपेक्टेड प्राइसेस, फ्यूचर प्राइसेस, और ये सब आपके बहुत सारे सेविंग के फैक्टर्स थे। फिर हमने इन्वेस्टमेंट के फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे, फैक्टर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कौन कौन से हमने डिस्कस किए थे, प्रोडक्टिविटी, एमपीके, डिजायर एमपीके। कैपिटल स्टॉक, है ना। जी। स्मॉल टी मीन्स टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन। बिल्कुल ये सब आपके इन्वेस्टमेंट के फैक्टर्स थे। तो फैक्टर्स ऑफ सेविंग एंड फैक्टर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट शिफ्ट आई एस कर्व राइट और लेफ्ट, ठीक है। देखिए शिफ्टिंग बहुत ईजी है। अब जब भी हम शिफ्टिंग ऑफ आइस कर्व एक्सप्लेन करने जाते हैं हम एक अजम्पशन रेज करते हैं। वो अजम्पशन क्या होती है, वो अजम्पशन होती है कि हम आउटपुट को कांस्टेंट अज्यूम करते हैं। क्योंकि आउटपुट को कांस्टेंट अज्यूम नहीं करेंगे तो शिफ्टिंग आपकी कंप्लीट नहीं होगी। तो अजम्पशन हमारी क्या है कि कांस्टेंट सर आउटपुट। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अजम्पशन हम रेज करते हैं शिफ्टिंग में। अजम्पशन क्या है, आउटपुट इज कांस्टेंट। देखें इस अजम्पशन को हम क्यों रेज करते हैं, इसके पीछे रीजंस क्या है। पहला रीजन आपके पास क्या है कि एक्स एक्सिस में आउटपुट है। आउटपुट का मतलब सिर्फ गुड्स मार्केट एक्टिविटी नहीं होता, आउटपुट का मतलब क्या होता है, सम ऑफ गुड्स मार्केट एक्टिविटी, सम ऑफ लेबर मार्केट एक्टिविटी एंड सम ऑफ एसेट मार्केट एक्टिविटी। तो आपकी कंट्री में लेट्स सपोज गुड्स मार्केट में एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन एसेट मार्केट के अंदर जो एक्टिविटी कम हुई वो गुड्स मार्केट
में जो पॉजिटिव चेंज है उसके मुकाबले में ज़्यादा नेगेटिव चेंज है, तो कंबाइन रियल जीडीपी बढ़ी नहीं, वो क्या हुई आपकी, कम हो गई। इसी तरह लेबर मार्केट भी है। अब गुड्स मार्केट में पॉजिटिव फिगर्स हैं, हो सकता है लेबर मार्केट और एसेट में नेगेटिव इतने ज़्यादा हों कि गुड्स मार्केट के पॉजिटिव को ऑफसेट कर दें। इसीलिए हम आउटपुट को कांस्टेंट रखते हैं, कांस्टेंट आउटपुट पे हम शिफ्टिंग करते हैं आइस कर्व तो की। ये जो अब अभी देखें, आपने बात बताई, ये आप वापस रिपीट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखें मैंने आपसे कहा कि जो आइस कर्व हम अंडरस्टैंड करते हैं, आइस कर्व की जो शिफ्टिंग होती है उस शिफ्टिंग के अंदर हम आउटपुट को कांस्टेंट रखते हैं। कांस्टेंट आउटपुट पे हम क्या करते हैं, आइस कर्व की शिफ्टिंग करते हैं। यानी कि सेविंग इन्वेस्टमेंट के फैक्टर्स की वजह से आइस कर्व में शिफ्टिंग जो होती है उसमें हम अज्यूम क्या करते हैं कि आउटपुट आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट आउटपुट से अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो एक सिंपल सी ट्रिक है, आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस ट्रिक से आप समझ जाओगे कि आइस राइट शिफ्ट होगा क्या लेफ्ट होगा। देखिए वो ट्रिक क्या है, तो आप आउटपुट को कांस्टेंट अज्यूम कर लें। अब देखें, लेट्स सपोज हम ए पॉइंट पर हैं, इक्विलिब्रियम रियल इंटरेस्ट रेट इज 7%, आउटपुट इज 4 और 4 को हमने कांस्टेंट कर दिया। ये सेविंग इन्वेस्टमेंट डायग्राम है। अब देखें, एनी फैक्टर ऑफ सेविंग, सेविंग इंक्रीज, गुड्स मार्केट में अगर सेविंग इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है, सेविंग कर्व शिफ्ट राइट वर्ड, और इक्विलिब्रियम रियल इंटरेस्ट रेट क्या होगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। अब इक्विलिब्रियम रियल इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो रहा है, सेविंग किससे इंक्रीज होता है, सेविंग इंक्रीज ड्यू टू करंट इनकम, ड्यू टू टैक्सेस, इन दो से आपका इंक्रीज होता है। तो सेविंग इंक्रीज, रियल इंटरेस्ट रेट आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब हमने आइस कर्व में आउटपुट को कांस्टेंट किया हुआ है, तो ये आइस कर्व है, आउटपुट आपके पास क्या है, 4 ही है। इंटरेस्ट रेट पहले 7 था, अब इंटरेस्ट रेट कितना है, कम होके 5 हो गया है। तो 5 पे आउटपुट कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप इस पॉइंट के ऊपर हो। तो आइस कर्व शिफ्ट डाउन टू लेफ्ट। तो एनी फैक्टर ऑफ गुड्स मार्केट, अगर गुड्स मार्केट में इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है, चाहे इन्वेस्टमेंट की वजह से हो चाहे सेविंग की वजह से हो, आइस कर्व आपका क्या होगा, शिफ्ट लेफ्टवर्ड। ठीक है। आप सेविंग बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, और इन्वेस्टमेंट कम होगी तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कम होगा। तो इंटरेस्ट रेट गुड्स मार्केट के अंदर डिक्रीज होने की दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक पॉसिबिलिटी क्या है, सेविंग इंक्रीज, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज। ठीक है। लाइक अगर मैं टैक्स ऑन कैपिटल इंक्रीज या डेप्रिसिएशन इंक्रीज, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टॉक इंक्रीज, डिजायर कैपिटल स्टॉक डिक्रीज एंड इन्वेस्टमेंट्स डिक्रीज। तो इन्वेस्टमेंट अगर डिक्रीज होंगे इसका मतलब क्या है कि न्यू इक्विलिब्रियम आपका आएगा, इक्विलिब्रियम रियल इंटरेस्ट रेट डिक्रीज। तो इक्विलिब्रियम रियल इंटरेस्ट रेट डिक्रीज का मतलब क्या हुआ कि आई स्क्वायर शिफ्ट डाउन टू लेफ्ट। ठीक है। तो इसका मतलब टैक्स की वजह से इंटरेस्ट रेट कम होता है, डिप्रेसिंग की वजह से इंटरेस्ट रेट कम होता है, करंट आउटपुट की वजह से इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, टैक्सेस की वजह से इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। तो इन फैक्टर्स की वजह से या किसी भी फैक्टर की वजह से गुड्स मार्केट में इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाए, इसका मतलब क्या है, इस कर्व आपकी शिफ्ट हो जाएगी डाउन टू लेफ्ट। और एनी फैक्टर ऑफ गुड्स मार्केट दैट इंक्रीज रियल इंटरेस्ट रेट। अब रियल इंटरेस्ट रेट गुड्स मार्केट में किन फैक्टर से इंक्रीज होता है, सेविंग डिक्रीज हो जाए या इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हो जाए। तो डिक्रीज इन सेविंग और इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, सेविंग के किसी फैक्टर से सेविंग कम हो जाए या इन्वेस्टमेंट के फैक्टर से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए। देखो इन्वेस्टमेंट को अगर हम राइट को शिफ्ट कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, और सेविंग को अगर हम लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज। तो सेविंग डिक्रीज और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, इन दोनों से होता है कि आपके पास रियल इंटरेस्ट रेट आपका इंक्रीज हो जाता है। तो रियल इंटरेस्ट रेट जब भी इंक्रीज होगा गुड्स मार्केट के अंदर, आइस कर्व आपका क्या होगा, आइस कर्व शिफ्ट टू राइट। तो आइस कर्व में शिफ्टिंग अप टू राइट हो सकती है और डाउन टू लेफ्ट हो सकती है। रियल इंटरेस्ट रेट रियल गुड्स मार्केट में बढ़ेगा तो आइस कर्व आपका क्या होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा। राइट वर्ड शिफ्ट क्यों हो रहा था,
अभी हमने डिस्कस किया, दोबारा मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। लेट्स सपोज एमपी के इंक्रीज या डिज़ायर कैपिटल स्टॉक इंक्रीज। अब इस इंटरेस्ट रेट पे हम लोग विलिंग टू इन्वेस्ट, ये है तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग फैक्टर, इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग, रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, न्यू इक्विलिब्रियम रियल इंटरेस्ट रेट जो मार्केट को रिस्टोर करेगा वो आपके पास क्या है अब 8% हो गया। आउटपुट हमने कांस्टेंट किया हुआ है, तो 4 पे पहले इंटरेस्ट रेट 7 था, अब 4 पे अब इंटरेस्ट रेट कितना है 8 है। हमें मालूम है शेप ऑफ आइस कर्व क्या होती है, आइस कर्व ऑलवेज नेगेटिव स्लोप, तो आइस कर्व शिफ्ट अप टू राइट। तो शिफ्टिंग ऑफ आइस कर्व डिपेंड करती है फैक्टर्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो सेविंग इन्वेस्टमेंट के जो फैक्टर्स हैं वो शिफ्ट करते हैं आइस कर्व को, सेविंग आपकी बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट कम होगा, आइस कर्व शिफ्ट होगा राइटवर्ड। सेविंग आपकी डिक्रीज होगी, इंटरेस्ट रेट आपका डिक्रीज होगा, सेविंग आपकी डिक्रीज होगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, सेविंग कर्व आपकी अपवर्ड शिफ्ट होगी। ठीक है, इसी तरह इन्वेस्टमेंट्स आपकी बढ़ेंगी, कम होंगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, आइस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज, आइस कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड। ठीक है, तो आइस कर्व की शिफ्टिंग में सिर्फ आपने इस चीज़ को आपने देखना है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट के फैक्टर्स इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, तो आप आंसर कर सकते हो कि आइस कर्व शिफ्ट होगा राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। ठीक है, तो ये था हमारे पास गुड्स मार्केट प्रेजेंटेशन। तो गुड्स मार्केट को प्रेजेंट हम कर रहे होते हैं किस चीज़ से, आई एस कर्व से। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, इनकी समरी दी हुई है। वेल्थ इंक्रीज का मतलब क्या है आपके पास, वेल्थ जब बढ़ेगी तो सेविंग कम होगी, सेविंग कम होने का मतलब क्या, आइस कर्व शिफ्ट अप टू राइट। गवर्नमेंट परचेजेस बढ़ेंगी, सेविंग कम होगा, आइस कर्व शिफ्ट अप टू राइट। टैक्सेस बढ़ेंगे तो दो फैक्टर्स, दो इफेक्ट हमने पढ़े, रिकॉर्ड इन इक्विलेंस नो चेंज और नॉर्मल इम्पैक्ट, सेविंग इंक्रीज, सेविंग इंक्रीज का मतलब क्या, आइस कर्व शिफ्ट डाउन टू लेफ्ट। इसी तरह फ्यूचर एमपी के इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज और आइस कर्व शिफ्ट। ठीक है, तो ये बुक के अंदर सारी डिटेल दी हुई है, रीजंस दिए हुए हैं। तो ये हमारे पास आइस कर्व, शिफ्टिंग ऑफ आइस कर्व, तो गुड्स मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं हम आई एस कर्व से। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ चैप्टर नंबर 9, टूल ऑफ एसेट मार्केट ना। तो प्रेजेंटेशन ऑफ एसेट मार्केट क्या होता है, एलएम कर्व होता है। एलएम मीन लिक्विडिटी ऑफ मनी। ठीक है, तो एलएम हम डिस्कस कर रहे हैं, एलएम कर्व को किस तरह ड्राइव किया जाता है। ठीक है, अंदर भी डायरेक्ट दिया हुआ है, मैं आपको ड्राइव करके बता देता हूँ। तो हाउ टू ड्राइव एलएम कर्व के भी तीन स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, हम दो डायग्राम्स बनाएंगे। डायग्राम नंबर 1, एसेट मार्केट इक्विलिब्रियम को हम शो करेंगे। एसेट मार्केट इक्विलिब्रियम मींस मनी डिमांड इक्वल्स टू मनी सप्लाई, ये हम लास्ट वीक में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको याद होगा। एक्स एक्सिस स्टॉक ऑफ मनी, मनी सप्लाई कर्व ऑलवेज वर्टिकल शेप, वाई पे आपने बहुत डिस्कशन किए थे। और मनी डिमांड कर्व फिर हमने डिस्कस किया, मनी डिमांड कर्व ऑलवेज नेगेटिवली स्लोप। एसेट मार्केट इक्विलिब्रियम आपका अचीव होता है मनी डिमांड इक्वल्स टू मनी सप्लाई, ये हमारा रियल इंटरेस्ट, इक्विलिब्रियम रियल इंटरेस्ट रेट और इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई। तो स्टेप नंबर 1, डेरिवेशन ऑफ एलएम कर्व, टू डायग्राम्स, डायग्राम नंबर ए एसेट मार्केट इक्विलिब्रियम और सेकंड डायग्राम हम बनाएंगे सेम, वाई एक्सिस रियल इंटरेस्ट रेट एंड एक्स एक्सिस आउटपुट, रियल इंटरेस्ट रेट एंड आउटपुट। ठीक है, इसको लेबल करते हैं इनिशियली इक्विलिब्रियम एट ए पॉइंट, ए पॉइंट पे आउटपुट हमारे पास 4000 है, ए पॉइंट आपका यहाँ पर आ रहा है। तो एसेट मार्केट इक्विलिब्रियम ए पॉइंट, इस पॉइंट पे रियल इंटरेस्ट रेट क्या है, बुक के लेबल से हम ले लेते हैं। तो इनिशियल जो इंटरेस्ट रेट है वो हमारे पास कितना है 4000 पे 3% रियल इंटरेस्ट रेट है।
तो 3% रियल इंटरेस्ट रेट इनिशियली एसेट मार्केट इक्विलिब्रियम और 3% रियल इंटरेस्ट रेट लेवल ऑफ आउटपुट इज 4000। ठीक है। तो एसेट मार्केट इक्विलिब्रियम वाई एम डी कर्व डाउनवर्ड स्लोप, ये आपने अंडरस्टैंड किया था कि मनी डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है, क्योंकि मनी डिमांड कर्व शोज रिलेशनशिप बिटवीन रियल इंटरेस्ट रेट एंड अमाउंट ऑफ मनी विलिंग टू होल्ड। ठीक है। तो रियल इंटरेस्ट रेट का मतलब नॉर्मल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन होता है, और इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, प्राइसेस ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ अल्टरनेटिव गुड्स। तो रियल इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है, रिटर्न्स ऑन नॉन मॉनेटरी एसेट्स और अल्टरनेटिव एसेट्स, यानी कि मनी को होल्ड करने के अलावा जितने भी आपके पास ऑप्शंस हैं, उन तमाम ऑप्शंस में रिटर्न्स आपके बढ़ रहे हैं। तो रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज रिटर्न्स ऑन नॉन मॉनेटरी एसेट्स और अल्टरनेटिव एसेट इंक्रीज। तो हम लोग करते क्या हैं, होल्डिंग मनी डिक्रीज करते हैं, मनी डिमांड कम करते हैं, और उन एसेट्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो रियल इंटरेस्ट रेट डिक्रीज, रिटर्न्स ऑन अल्टरनेटिव एसेट्स नॉन मॉनेटरी एसेट्स डिक्रीज, मनी डिमांड इंक्रीज। ठीक है। मनी सप्लाई का वर्टिकल शेप क्यों होता है, क्योंकि मनी सप्लाई टोटली कंट्रोल कर रहा होता है सेंट्रल बैंक। तो मनी सप्लाई कर्व ऑलवेज वर्टिकल शेप। एसेट मार्केट इक्विलिब्रियम अचीव कंप्लीट एडजस्टमेंट ऑफ रियल इंटरेस्ट रेट, इक्विलिब्रियम रियल इंटरेस्ट रेट 3%, मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई इज 1000। ठीक है। तो 1000 पे रियल इंटरेस्ट रेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रियल मनी डिमांड एंड रियल मनी सप्लाई दोनों आपके पास क्या है, 1000। रियल मनी डिमांड इज मनी डिमांड डिवाइड बाय प्राइस, रियल मनी सप्लाई इज मनी सप्लाई डिवाइड बाय प्राइस। ठीक है। तो इनके इक्वेशंस भी हमने डिस्कस किए थे, यहाँ पे दोबारा इक्वेशंस यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट किए हुए, ये रियल मनी डिमांड फंक्शन है और रियल मनी सप्लाई आपकी इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई कर्व, तो फर्स्ट स्टेप हाउ टू ड्राइव एल एम कर्व हमने कंप्लीट कर लिया। सेकेंड स्टेप इज सेम। सेकेंड स्टेप में लेट्स सपोज हम आउटपुट को इंक्रीज करते हैं। आउटपुट इंक्रीज, आपकी कंट्री के अंदर आपका करंट आउटपुट और करंट इनकम आपका इंक्रीज हो गया 4 to 5000, आउटपुट 4 से 5000 हो गया। तो करंट आउटपुट के बढ़ने से एसेट मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या इम्पैक्ट होगा, अब आपको मालूम है करंट आउटपुट और करंट इनकम इज फैक्टर ऑफ मनी डिमांड। तो वाई इंक्रीज करंट इनकम इंक्रीज, मनी डिमांड क्या होती है आपकी, इंक्रीज हो जाती है। मनी डिमांड का और इनकम का डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन प्रोपोर्शनल रिलेशन नहीं है। जितनी इनकम बढ़ती है उतनी हम मनी डिमांड नहीं बढ़ाते, लेकिन हम मनी डिमांड इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज इन मनी डिमांड प्रोपोर्शनली लेस देन इंक्रीज इन इनकम। इसके रीजंस हम लास्ट वीक डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो करंट इनकम इंक्रीज 4 to 5, दिस मीन्स मनी डिमांड इंक्रीज, मनी डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। तो मनी डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड को हमने किस तरह एक्सप्लेन करना था, रियल इंटरेस्ट रेट 3% है, 3% पे अब लोग मनी डिमांड कितना कर रहे हैं, लोग मनी डिमांड कर रहे हैं 1200। 1200 मनी डिमांड कर रहे हैं, बट मनी सप्लाई आपकी फिक्स है, सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई बढ़ा नहीं रहा, 1000 ही है। अब होगा क्या, मनी डिमांड और मनी सप्लाई फैक्टर्स के इंटरसेक्शन से रियल इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ेगा। रियल इंटरेस्ट रेट कब तक बढ़ेगा, जब तक न्यू इक्विलिब्रियम आपका रीस्टोर ना हो जाए। तो न्यू इक्विलिब्रियम रीस्टोर एट बी पॉइंट, और बी पॉइंट पे इंटरेस्ट रेट हमारा 3% से बढ़ के कितना हो गया, 5% अब रियल इंटरेस्ट रेट हो गया। तो 5% इज रियल इंटरेस्ट रेट। तो दिस मीन्स आउटपुट जब इंक्रीज हुआ, इनकम लेवल जब इंक्रीज हुआ, इंटरेस्ट रेट पहले 3% था, बढ़ के 5% हो गया। तो फोर आउटपुट पे ए पॉइंट था, तो बी पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, 5% रियल इंटरेस्ट रेट है, और 5% को 5000 से अगर हम मैच करते हैं तो बी पॉइंट हमारा यहाँ पर बनता है। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाता है स्टेप नंबर 3। तो स्टेप 3 में हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो हमारे पास एक पॉजिटिवली स्लोप कर्व आती है। इस कर्व का मतलब क्या है, इस कर्व का मतलब है कि ये कर्व शो कर रही है रिलेशनशिप बिटवीन रियल इंटरेस्ट रेट एंड आउटपुट। और इस कर्व के हर पॉइंट के ऊपर क्या एक्सप्लेन हो रहा है, एसेट मार्केट इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन हो रहा है। ए पॉइंट पे भी मनी डिमांड इक्वल्स टू मनी सप्लाई, बी पॉइंट पे भी मनी डिमांड इक्वल्स टू मनी सप्लाई।
और जिन पॉइंट्स को हमने हाईलाइट नहीं किया उन पॉइंट्स पे भी मनी डिमांड आपके पास क्या इक्वल्स टू मनी सप्लाई है। तो ये कर्व रिप्रेजेंट करता है एसेट मार्केट इक्विलिब्रियम। इस कर्व को कहा जाता है लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस फॉर मनी और एलएम कर्व। LM curve always positively slope. LM curve shows the relationship between real interest rate and output at each point of LM curve. Money demand equals to money supply. तो एसेट मार्केट को रिप्रेजेंट हम करते हैं LM कर्व से। तो जनरल इक्विलिब्रियम में एसेट मार्केट का जो टूल हम यूज़ करते हैं वो टूल हमारे पास क्या है, LM कर्व। क्योंकि इस कर्व के हर पॉइंट पे एसेट मार्केट का इक्विलिब्रियम शो हो रहा है। ठीक है, तो LM कर्व हमने ड्राइव कर लिया। अब हम आते हैं शिफ्टिंग ऑफ LM कर्व। LM कर्व की शिफ्टिंग ना, तो LM कर्व शिफ्ट होगा डेफिनेटली मनी डिमांड के फैक्टर से और मनी सप्लाई से। शिफ्टिंग ऑफ LM कर्व में भी हम अजम्पशन रेज करते हैं कि आउटपुट हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट आउटपुट पे हम शिफ्टिंग करते हैं ताकि शिफ्टिंग आप क्विकली हम अंडरस्टैंड कर सकें। तो आउटपुट को हमने कांस्टेंट किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम आते हैं शिफ्टिंग ऑफ LM कर्व। मनी सप्लाई के बढ़ने से LM कर्व पे क्या इम्पैक्ट होता है, मनी डिमांड के बढ़ने से और कम होने से LM कर्व पे क्या इम्पैक्ट होता है। LM कर्व के 9 फैक्टर्स हमने डिस्कस किए लास्ट क्लास के अंदर, आपको याद होंगे क्योंकि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो इनिशियल इक्विलिब्रियम रियल इंटरेस्ट रेट 3%, मनी डिमांड मनी सप्लाई 1000, इक्विलिब्रियम रियल इंटरेस्ट रेट 3% और 3% पे आउटपुट हमारे पास कितना है, 4000 आउटपुट है। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई LM कर्व को शिफ्ट करते हैं। ठीक है, पहले मनी सप्लाई की बात करते हैं। तो मनी सप्लाई का कोई फैक्टर नहीं होता, सेंट्रल बैंक डायरेक्टली मनी सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज। इफ सेंट्रल बैंक इंक्रीज मनी सप्लाई दिस मीन्स मनी सप्लाई कर्व वर्टिकली शिफ्ट राइटवर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब सेंट्रल बैंक ने 1200 मनी सप्लाई कर दिया है और जो मनी डिमांड है 3% पे वो कितनी 1000 है। तो मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई फैक्टर्स रियल इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करेंगे। न्यू इक्विलिब्रियम आपका रिस्टोर होगा एट बी पॉइंट, और बी पॉइंट पे अब रियल इंटरेस्ट रेट 3% नहीं है, वो कितना आपका 2% है। तो मनी सप्लाई इंक्रीज बाय सेंट्रल बैंक, रियल इंटरेस्ट रेट इन एसेट मार्केट डिक्रीज। आउटपुट हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, 4000 पे पहले इंटरेस्ट रेट 3 था, अब 4000 में इंटरेस्ट रेट आपका क्या हो गया, 2% हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एनी फैक्टर ऑफ एसेट मार्केट इक्विलिब्रियम इफ रियल इंटरेस्ट रेट डिक्रीज LM कर्व शिफ्ट डाउन टू राइट। तो LM1 LM2 LM कर्व राइट वर्ड शिफ्ट कब होगा, जब रियल इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा। ठीक है, इसी तरह इफ सेंट्रल बैंक इंक्रीज मनी डिक्रीज मनी सप्लाई, अगर सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को डिक्रीज करता है वाया मॉनेटरी पॉलिसी, इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल आप 3% पे थे, 1000 मनी सप्लाई मनी डिमांड थी। अब सेंट्रल बैंक ने मनी सप्लाई मनी डिमांड मनी सप्लाई कितनी कर दी, 800 कर दी। यानी इंटरेस्ट रेट 3% है लेकिन सेंट्रल बैंक ने मनी सप्लाई 3% कर दी। तो मनी डिमांड ग्रेटर देन मनी सप्लाई हो गई। तो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस अब इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेंगे। मनी सप्लाई तो चेंज नहीं होगी लेकिन इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से मनी डिमांड कम होती जाएगी। न्यू इक्विलिब्रियम आपका रीस्टोर हो रहा है एट सी पॉइंट, और सी पॉइंट पे इंटरेस्ट रेट कितना है, 5% है। इसका मतलब क्या हुआ, इफ मनी सप्लाई डिक्रीज LM कर्व शिफ्ट अप टू लेफ्ट, क्योंकि अब 4000 पे रियल इंटरेस्ट रेट ना 2% है ना 3% है, वो कितना आपके पास 5% है। तो LM कर्व आपका शिफ्ट हो रहा है लेफ्टवर्ड, LM1 LM2 LM3। तो LM लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होता है, जब एसेट मार्केट के अंदर रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो ये था मनी सप्लाई की वजह से LM कर्व में क्या शिफ्टिंग आती है। अब देखें मनी डिमांड की वजह से LM कर्व में क्या शिफ्टिंग होती है। तो ये भी सिंपल है, एनी फैक्टर ऑफ एसेट मार्केट इक्विलिब्रियम, रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज का मतलब क्या है, LM कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड। ठीक है, तो शिफ्टिंग में एनी फैक्टर ऑफ एसेट मार्केट रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज का मतलब क्या है, LM आपका शिफ्ट होगा
अप टू लेफ्ट. एनी फैक्टर ऑफ एसेट मार्केट, रियल इंटरेस्ट रेट डिक्रीज, एलएम करो शिफ्ट डाउन टू राइट. ठीक है. राइट वर्ड. तो लाइक इफ प्राइस लेवल इंक्रीज मनी डिमांड इंक्रीज, है ना. तो मनी डिमांड इंक्रीज होने का मतलब क्या है, मनी सप्लाई तो फिक्स है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, न्यू इक्विलिब्रियम बी पॉइंट पे रिस्टोर होगा. ठीक है. तो एनी फैक्टर ऑफ मनी डिमांड इंक्रीज, एलएम कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड. एनी फैक्टर ऑफ मनी डिमांड डिक्रीज. तो मनी डिमांड डिक्रीज किससे होता था, एफिशिएंसी इन टेक्नोलॉजी मेथड और लिक्विडिटी ऑफ अल्टरनेटिव एसेट्स और फ्यूचर इन्फ्लेशन इंक्रीज, इन सब से मनी डिमांड डिक्रीज होता था. मनी डिमांड डिक्रीज का मतलब क्या है, एसेट मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम रियल इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो गया. तो रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, एलएम कर्व शिफ्ट अप टू लेफ्ट. रियल इंटरेस्ट रेट डिक्रीज, एलएम कर्व शिफ्ट राइट टू डाउन. ठीक है. तो ये प्राइस लेवल बढ़ा, तो एलएम कर्व कहाँ शिफ्ट होगा? राइट वर्ड, प्राइस लेवल बढ़ता है तो उसका मतलब क्या होता हम्म, है, लेफ्ट वर्ड ना. राइट वर्ड तो आपका मनी जी. डिमांड कर्व हो गया ना. इससे अगर हमारा ये प्राइस लेवल प्राइस लेवल इंक्रीज, बढ़ेगा तो? प्राइस लेवल बढ़ेगा तो लोग ज़्यादा मनी डिमांड करेंगे, ज़्यादा अमाउंट होल्ड करेंगे ना. मनी डिमांड ज़्यादा हम्म, करेंगे, इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा. इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने का मतलब क्या है, एलएम कर्व शिफ्ट हो रहा है आपका लेफ्टवर्ड. ठीक है. तो एसेट मार्केट में किसी भी फैक्टर से रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, एलएम कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, और रियल इंटरेस्ट रेट फॉल हो जाए, एलएम कर्व आपका शिफ्ट होगा राइटवर्ड. ठीक है. अब देखिए बुक के अंदर इन फैक्टर्स को एक्सप्लेन किया हुआ है. शिफ्टिंग ऑफ एलएम कर्व, ये सारे फैक्टर्स हैं. नॉमिनल मनी सप्लाई का रिलेशन क्या था मनी डिमांड के साथ, मनी डिमांड इंक्रीज, है ना. नॉमिनल मनी सप्लाई इंक्रीज, रियल इंटरेस्ट रेट डिक्रीज. तो रियल इंटरेस्ट रेट डिक्रीज का मतलब क्या, एलएम कर्व क्या हो गया आपके पास, डाउन टू राइट. प्राइस लेवल इंक्रीज, मनी डिमांड इंक्रीज, रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, एलएम कर्व शिफ्ट अप टू लेफ्ट. ठीक है. यहाँ पे रीजंस भी दिए हुए हैं, तरह फ्यूचर इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और ये बाकी फैक्टर्स भी हैं, इन सबको आपने खुद कवर करना. तो ये हमने डिस्कस किया एलएम कर्व, लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस फॉर मनी, उसको ड्राइव किया और उसकी शिफ्टिंग को हमने अंडरस्टैंड किया. मनी सप्लाई इंक्रीज, रियल इंटरेस्ट रेट डिक्रीज, एलएम कर्व शिफ्ट राइट वर्ड. ठीक है. अब हम आते हैं जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमी. तो जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमी मीन्स all three markets simultaneously equilibrium same point. ठीक है. तो जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, ठीक है,